Okay, let's begin today's lecture. Okay, तो कल दो क्वेश्चंस रह गए थे कंपाउंड एंगल्स के, पहले वो कर लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. ठीक है, सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस, राइट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आज का. If 2 sin alpha cos beta sin gamma is equal to sin beta into sin alpha plus gamma. ठीक है, if this condition is given to us, then we need to show that tan alpha, tan beta and tan gamma are in HP, are in harmonic progression. अच्छा, ये देखो, हम जानते हैं कि कोई 3 टर्म्स HP में कब रहेंगे, जब उसके रेसिप्रोकल्स AP में होंगे. माने दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज प्रूविंग cot alpha, cot beta, cot gamma are in AP. So if you are able to prove कि cots are in AP, then automatically tans will be in HP, right? Okay. Let's come back to the question. ये जो given expression है, उसमें clearly you see LHS में 2 sin alpha cos beta sin gamma है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ. But it's RHS, which we can do something here, right? RHS में देखो sin alpha plus gamma है, so obviously देखो we see compound angle here. That means we could expand. So let's expand RHS by keeping LHS same. We 2 sin alpha cos beta sin gamma is equal to sin beta multiplied by sin A plus B formula, sin alpha cos gamma plus cos alpha sin gamma. ठीक है, अच्छा. Okay, we could expand this further. 2 sin alpha cos beta sin gamma, we could open the brackets, we get sin alpha sin beta cos gamma plus cos alpha sin beta sin gamma. आपने नोटिस किया, I maintain this order alpha beta gamma. ठीक है, you see we have just now discussed to prove tan alpha tan beta tan gamma in HP, we have to prove cot alpha cot beta cot gamma in AP. So this is same as proving cot alpha cot beta cot gamma in AP. माने इनडायरेक्टली अपने को इन सारे टर्म्स को cot में कन्वर्ट करना है. Now this is a very famous step to convert given equation in terms of cot. जिसमें sin cos है, ऑलरेडी हम कर चुके एक दो क्वेश्चन. tan में कन्वर्ट करना होता तो we divide by cos, cot में कन्वर्ट करना होता तो we divide by sin, isn't it? अच्छा, फिर किससे डिवाइड करें? Do we divide by sin alpha? Do we divide by sin beta? Or do we divide by sin gamma? Or do we divide by all of them? Since there are 3 terms here everywhere, so it is better if we divide by all of them. Sin alpha, sin beta, sin gamma. Dividing by sin alpha, sin beta, sin gamma on both sides. देखो हम डायरेक्ट करेंगे. जब इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा 2, sin alpha कैंसिल, sin gamma कैंसिल, तो बचेगा cos beta upon sin beta which gives us cot beta. ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड किया यहाँ बचेगा cot gamma और यहाँ बचेगा cot alpha. and this is same as cot beta is equal to cot alpha plus cot gamma. We say this is more or less over. It is in the form of 2b is equal to a plus c. So therefore we have proved कि cot alpha, cot beta, cot gamma are in AP. Therefore इनके reciprocals are in HP. अच्छा, is there any other way in which you could have solved this question? Yes, you could have directly proved HP वाला condition directly without converting it in terms of cos. अगर आपको tan में लाना होता, we would have divided by cos. We would have divided by cos alpha, cos beta, cos gamma. ठीक है, we would have divided by cos alpha, cos beta, cos gamma.
ठीक है, देन प्रॉब्ली व्हाट वुड वी हैव ऑब्टेन, देखते हैं यू नो जस्ट इन केस अगर मान लो आप लोगों को ये आइडिया स्ट्राइक नहीं हुआ, अब तो सिर्फ दिखा tan, tan के लिए रिमेंबर वी डिवाइड बाय cos, तो यहां बचेगा अगर हमने cos अल्फा cos बीटा cos गामा से डिवाइड किया, ठीक है, ओके, देन व्हाट डू वी गेट, ये 2 जब इसको इससे डिवाइड किया cos बीटा कैंसिल हो जाएगा और यहां आएगा tan अल्फा tan गामा और RHS में sin बाय cos इज tan अल्फा tan बीटा cos गामा कैंसिल प्लस cos अल्फा कैंसिल sin अपॉन cos इज tan बीटा sin अपॉन cos tan गामा, तो क्लियरली ये देखो वी गेट 2 tan अल्फा tan गामा अपॉन, क्योंकि यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, tan बीटा कॉमन निकलेगा, तो जो ब्रैकेट में बचेगा उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे व्हिच इज tan अल्फा tan गामा। तो आपने नोटिस किया ये कौन सा कंडीशन में कन्वर्ट हो गया कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, राइट, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c tan अल्फा प्लस tan गामा, तो 2ac अपॉन a प्लस c, इसका मतलब a b c आर इन hb, तो ये h वाला कंडीशन भी प्रूव हो गया, ठीक है, ओके, तो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज आस्क्ड इन मेंस और ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। If cos alpha plus beta is 3/5, sin alpha minus beta is 5/13, and it is given कि alpha and beta both less than pi by 4, then he is asking us to find the value of tan 2 alpha. Very interesting question. So he could have also asked us to find sin 2 alpha and sin, not just tan, you know, he could have also asked us to find tan 2 beta. You know, not just tan, it could have been sin or it could have been cos as well, है ना, ये मेन वालों का फेवरेट है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, what would your first step be? जैसे कि देखो अपने पास cos अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, अपने पास cos अल्फा प्लस बीटा है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिमेंबर ये 3/5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, so we could actually find sin अल्फा प्लस बीटा, अगर ये 3/5 रहा तो ये रहेगा 4/5, एंड व्हाट अबाउट cos, अच्छा अपने पास sin अल्फा माइनस बीटा है तो हम फाइंड कर पाएंगे cos अल्फा माइनस बीटा, अगर ये 5/13 होता तो ये 12/13 होगा, ठीक है, अच्छा, ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसका मतलब यू नो इनडायरेक्टली if you divide this upon this, if you divide these two, we'll be able to find tan alpha plus beta and tan alpha minus beta, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 4/3, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 5/12, ठीक है, अच्छा अपने को फाइंड क्या करना है, tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा का फॉर्मूला है अपने पास 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट देन हमने तो वो इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, सो मोस्ट प्रॉब्ली वी वोंट बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, राइट, सो व्हाट डू वी डू, एनी आइडियाज, ये देखो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग tan 2 अल्फा, isn't it? जबकि अपने पास tan अल्फा प्लस बीटा है और tan अल्फा माइनस बीटा है, so what do you think can be done here? Okay, tan
हम 2 अल्फा को लिखेंगे, 2 अल्फा जो है वो इन दोनों का एडिशन है, माने 2 अल्फा इज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। नाउ 2 अल्फा को हमने इनके कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है, और हम इसको a जैसा ट्रीट करेंगे और इसको b जैसा ट्रीट करेंगे, माने दिस इज सेम एज tan a plus b, which is basically tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, ठीक है। All you have to do is substitute these values here, you will get the answer, ठीक है। So which is basically tan alpha plus beta 4/3 plus tan alpha minus beta upon 1 minus 4/3 5/12. So do not cancel out the terms here, क्योंकि common denominators will get cancelled. 48 plus 15 upon 12 3 is 36. 36 minus 20. So this should come out 63 upon 16. Okay. Now obviously we should be able to find tan 2 beta as well. So we'll just write the combination for this and then I'd like you to try the other versions as homework. है ना? अच्छा. And how do you find tan 2 beta? 2 beta कैसे find करें? Of course, you just have to subtract these two. माने अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, राइट। ये माइनस और ये प्लस, तो आप कर सकते हो कैलकुलेशन पार्ट। कितना आ रहा है इसका आंसर? ओके, सो एनीवे यू नो यू कैन जस्ट डू दिस ऑन योर ओन। अच्छा, सिमिलरली अगर वो sin 2 अल्फा पूछा होता, you would have applied sin a plus b formula. So similarly you could find sin 2 alpha, sin 2 beta, cos 2 alpha, cos 2 beta. So I'd like you to try the others as homework, है ना? Try sin 2 alpha, third sin 2 alpha, fourth sin 2 beta, fifth cos 2 alpha, sixth cos 2 beta, ठीक है? So आप लोगों को ये याद रहेगा, right? Okay, so you see, I think you know this is sufficient enough for compound angle concept. Now let's begin factorization formula. अच्छा, before we move forward, there are two important results. पहले ये results introduce करेंगे, लेकिन questions हम बाद में solve करेंगे इस पे, ठीक है? Once you introduce double angle, triple angle and factorization formula, उसके बाद हम सारे mix करके करेंगे questions, तब ये हम cover कर पाएंगे, right? So these are very very important formulae. Remember, sin a plus b into sin a minus b. Remember this formula? Sin a plus b, sin a minus b. Yeah, then this is just like a plus b, a minus b. What's the formula? Sin a plus b, sin a minus beta. याद है? It is basically sin square a minus sin square b. ये हम properties of triangle के वक्त अप्लाई किया था शायद से। तो sin a plus b, sin a minus b, sin square a minus sin square b, और आप इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हो। You could write both in terms of cos. तब है ना ये रिवर्स हो जाएंगे। And this becomes cos square b minus sin cos square b minus cos square a. But लेकिन ये this we do not apply, so need not worry. So ये most important formula, sin a plus b, sin a minus b, sin square a minus sin square b. Similarly अपने पास एक formula है cos a plus b, cos a minus b, cos a plus b, cos a minus b. अच्छा, यूजुअली क्या है कि साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस होता है, बट दिस इज वन फॉर्मूला व्हिच इज एक्सेप्शनल. ये एक एक्सेप्शन है. तो एक साइन, दोनों भी साइन का फॉर्मूला में, या दोनों कॉस, माने कॉस में उल्टा रहेगा, एक कॉस और दूसरा साइन. इसका मतलब इसका फॉर्मूला रहेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और
और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये 1 माइनस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। ठीक है, इसके डेरिवेशंस अपना बोर्ड्स नोट्स में है। यू नीड टू अप्लाई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ दिस एंड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ दिस एंड देन a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, फिर आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना होगा, तो यू नो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हम बोर्ड्स क्लास में कर चुके हैं। तो अभी के लिए ना आपको ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ठीक है, नाउ अब आते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पे। उसमें ना दो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं, राइट? सम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस है ना। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? यू नो इसके एप्लीकेशन जो है वो हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे बाद में, और ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑफ कोर्स द चैप्टर इटसेल्फ, है ना। अच्छा, तो इसमें क्या है कि साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, सो 4 वर्जन्स पॉसिबल, 4 केसेस आर पॉसिबल, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस या दोनों साइन। रिमेंबर, सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, 2 sin a cos b। ठीक है, सेकेंड 2 cos a sin b। ठीक है, और थर्ड 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b। ठीक है, सो ये डिराइव कैसे करें? हाउ डू वी डिराइव दिस फॉर्मूला? ऑफ कोर्स वी हैव टू अप्लाई कंपाउंड एंगल्स। सो यहाँ पर राइट कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि sin a प्लस b इज sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट? एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट sin a माइनस b? sin a cos b minus cos a sin b, isn't it? So obviously to get 2 sin a cos b, इन दोनों को ऐड करना है। इसका मतलब तो ये sin cos होता, एंड रिमेंबर इन सारे केसेस में a हैज टू बी ग्रेटर देन b, है ना, इसलिए देखो ये दोनों अलग अलग होंगे। एनीवे, तो 2 sin a cos b होता, अगर पहले साइन आएगा, अगर पहले साइन होता तो इट इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, अच्छा, अगर cos पहले और sin बाद में, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाना चाहिए, यानी इन दोनों को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब दिस हैज टू बी sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, अच्छा, लेट्स लुक एट cos के फॉर्मूले। cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cos a माइनस b is cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, so obviously to get 2 cos a cos b we have to add them, yes, so cos a plus b plus cos a minus b, right? अच्छा, 2 sin a sin b के लिए ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज एक्सेप्शन, इजंट इट? हम माइनस में से प्लस वाला इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये दोनों सा एक्सेप्शन है अगेन। तो माइनस में से प्लस वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos a minus b माइनस cos a plus b, राइट? ओके, So
let's solve some questions based on this. And remember to apply this formula we need 2, है ना. पहली बात अपने को 2 की जरूरत है, and make sure कि the greatest angle comes first. So these are the things we'll have to keep in mind, right? Okay, let's solve some questions. Okay, convert the following product into sum. Convert the following product into sum. ठीक है, आपको sum or difference. Convert the following product into sum or difference. ठीक है, first question. अच्छा, first में first 2 sin 14 degree cos 6 degree. Second, cos 71 degree sin 29 degree. Third, 2 cos 3a cos 3. Fourth, 2 cos 5 degree cos 17 degree. Fifth, sin 15 sin 30. Sixth, cos 4a sin 3a. ठीक है, you could add 4 here and say 5 here. Maybe 3a and 4. Okay, now first वाला इसका आंसर क्या रहेगा? तो 2 sin a cos b फर्स्ट वाला लगेगा, है ना. sin a plus b sin 20 plus sin a minus b sin 8 degrees, isn't it? अच्छा, सिमिलरली सेकंड केस में ना कुछ मिसिंग है, 2 मिसिंग है. So what do? We're gonna multiply by 2 and divide by 2, and it is regular formula now. 2 cos a sin b. 2 cos a sin b के लिए sin को सब्ट्रैक्ट करना है ना. तो sin a plus b which is 100 I guess minus sin a minus b 71 minus 29. यूनिट प्लेस में आएगा 2, है ना, और 42, is it 42? Now next question. इसमें 2 है ऑलरेडी, तो 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b. इसमें भी 2 है. अच्छा, इसमें देखो मॉडिफिकेशन, ग्रेटेस्ट एंगल कम्स फर्स्ट. इसका मतलब पहले इसको रीअरेंज करेंगे. कैसे? यहाँ 17 होना चाहिए और यहाँ वो कितना था एंगल? 5 डिग्री था क्या? So this should be cos a plus b plus cos a minus b. What about this one? इसमें 4 है, तो 4 को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. ऐसे 2 into and moreover greatest angle should come first. इसका मतलब पहले 30 बाद में 15, is it? अच्छा, so this would be 2 times 2 sin a sin b. अच्छा, 2 sin a sin b के लिए डिफरेंस में से सम को सब्ट्रैक्ट करना है, माने cos a minus b minus cos a plus b. ठीक है. अच्छा, इसमें 6 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया.
अच्छा, मोर ओवर इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट एंगल शुड कम फर्स्ट, इसका मतलब पहले साइन बाद में cos। साइन 4a cos 3a, साइन 4a cos 3a, साइन cos है तो फर्स्ट फॉर्मूला साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है, pretty simple isn't it? राइट, सो सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।